Hello dear students, today we are going to solve grammar section of CBSE English final paper set number 261, 262 and 263. Okay, let's start the video without wasting time, and this video is going to be very important for class 9 students and if you are preparing any for any competitive exam then also. Question number 3. So first question is, read the given sentence from a story. Fill in the blank by using the correct form of the word. This is from a story. Story is always written in past. Okay, so that means we are to choose, we are to use whether second form or was, were plus second first form plus ing, maybe it is, and had plus third form also. So we need to choose any one of these. Let's see. As I entered, here it is second form. As I entered the room, the first thing that struck me odd was the candle still dash on the table. So that means candle was still burning. तब भी ये जो candle है वो जल रही थी. Okay, so this task was still going on. So that means still burning. So burning is the correct answer. No need to use was again because it is already given. Next question is error correction. Health experts worldwide are concerning about the surge in health problems. So very easy this question is. This is of passive voice. Okay, अभी देखिए कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम कैसे पता लगेगा कि पैसिव है या एक्टिव है. अगर देखिए आप इसको उल्टा करके देखिए, अगर ये होता कि द सर्च इन हेल्थ प्रॉब्लम्स ओके आर बदरिंग द हेल्थ एक्सपर्ट्स, तब होता एक्टिव कि ये जो हैं ये हेल्थ एक्सपर्ट्स को बदर करते हैं. ओके, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको टेंशन देती हैं. तो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि ये चीज यहाँ पर एक्टिव है. लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है वर्ल्ड वाइड दे आर कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम्स. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो चीज एक्टिव होनी चाहिए थी वो एक्टिव ना होकर पैसिव हो गई है. ठीक है, सो हेल्थ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड आर कंसर्निंग नहीं, आर कंसर्न्ड. ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. सो कंसर्निंग इज द एरर एंड कंसर्न्ड इज द करेक्शन. यू नीड टू प्रैक्टिस. ओके, आपको पहले ही मतलब ग्लिम्स में पता चल जाना चाहिए कि दिस इज पैसिव और एक्टिव. अगर वो पैसिव है सो यू आर टू यूज थर्ड फॉर्म. Next one is a mask is used to hide the identity dash a person. So obvious सी बात है identity of a person. Next is of reported speech. बहुत 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 easy question है ये. You are just to change this one. The student greeted, तो hello तो हो गया, and mentioned that she, person भी already change कर दिया है. This is has और have है ये, so has have change into had and come third form come ही रहेगा. So the correct answer is had come. Now see ये तो है ही नहीं दोनों क्योंकि दोनों में has आ गया, लेकिन इन दोनों में आपको ध्यान से चूज करना है क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हम थोड़ा नर्वस होते हैं तो हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में देखते हैं ये रहा had, ये हो गया. No, this is had came, that is wrong. So D is the correct answer. Next one is once again error correction. Embrace change, यहाँ पर जो change है that is noun not the verb. So embrace change as an opportunity means we should welcome change in our life as an opportunity for what? For personal growth and allowed it to improve your life. Now see ये जो allowed है ये sentence का tense change कर रहा है. पहले tense जो है वो present में है, embrace first form है. अब allowed second कैसे हो गया? ठीक है, सो ये रॉन्ग है. अलाउड नहीं होगा, ये होगा अलाउ. नेक्स्ट वन देखिए रिपोर्टेड स्पीच. शॉपकीपर व्हाट बुक डू यू वांट? द शॉपकीपर आस्क्ड रमेश व्हिच बुक डिड ही वांट? रमेश, नाउ व्हाट इज रमेश रिप्लाई? अ रेफरेंस बुक फॉर फिजिक्स व्हिच आई कैन यूज फॉर माय प्रोजेक्ट वर्क. सो रमेश रिप्लाइड दैट, यहां हमें थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, ही वांटेड. और
डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये भी ऐड करते हैं तो भी मतलब एक्सेप्टेड होगा। रमेश रिप्लाइड बट, यहाँ पे अगर दैट दे दिया ना तो ही वांटेड इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं रमेश रिप्लाइड दैट अ रेफरेंस बुक, सो ही वांटेड लिखने से बेटर हो जाएगा। ही वांटेड अ रेफरेंस बुक फॉर फिजिक्स which I change according to Ramesh, he can change into could use for my change into his then project work. Okay, इस टाइप से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर टू चूज वन ऑफ दिस। देयर आर मेनी इन्वेंशंस ऑफ साइंस, ऑब्वियस सी बात है, मेनी इन्वेंशंस ऑफ साइंस पॉइंट आउट कर रहा है, सो विच वर्ड इज करेक्ट ऑप्शन? which have benefited human beings in many ways. Next question is, in our country, universities offer a range of courses. Now see, universities that is countable, ठीक है, तो एक तो मोर तो होगा नहीं क्योंकि मोर तो कंपैरिजन में होता है, या तो मैनी होना चाहिए। ईच यूनिवर्सिटीज ये भी नहीं हो सकता, ईच यूनिवर्सिटी होता, अब या फिर फ्यू होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि फ्यू कब यूज होता है। फ्यू तब यूज होता है जब नेगेटिव सेंस में बात हो रही हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है, वो कह रहा है कि इन आवर कंट्रीज डैश यूनिवर्सिटीज ऑफर अ रेंज ऑफ कोर्सेज दैट्स व्हाई फॉरेन स्टूडेंट्स प्रेफर इंडियन यूनिवर्सिटीज। मतलब बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो एक वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज ऑफर करती हैं, इसीलिए यहाँ पर वो प्रेफर करते हैं, तो दैट मीन्स कि मैनी होगा। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता कि इसीलिए यहाँ पर कोई प्रेफर नहीं करता, तब फ्यू होता, ठीक है। तो ये आपको बहुत केयरफुली चूज करना है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, वेयर टू यूज, देन लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। सो आप वो वीडियो ध्यान से देख के फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज सीख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज once again of reported speech and very easy, free के marks हैं ये। The city planner said that the new park is, छोड़ दिया इन्होंने, dash of several months, आगे का पार्ट दे रखा है, so we are to choose, we are to change only this, is a result, so is are change into was a result, आगे सारा सेम ही है, तो is are change into was were, ये आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई करना है एंड यू विल गेट 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो ही स्वेड दैट ही हैड स्टोलन द बैग, ही सॉ दैट ही हैड स्टोलन द बैग, ही वाज स्वेयरिंग दैट ही हैड नॉट स्टोलन द बैग, सॉरी नॉट है सभी में, ही स्वेयर्स दैट ही हैड नॉट स्टोलन द बैग। देखिए यहाँ पे हैड है, ठीक है, जब हैड है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर पास्ट होना चाहिए, तो ये तो प्रेजेंट है, ये तो रॉन्ग हो गया। कसम खा रहा था, कंटिन्यूटी नहीं आएगी, तो ये भी रॉन्ग हो गया, बच गए ये दोनों। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगी क्योंकि दोनों सेम है। नाउ यू आर टू नो विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ स्वेर। सो स्वेड नहीं होता है, हमेशा उसकी सेकेंड फॉर्म सॉर होती है। सो ही सॉ दैट ही हैड नॉट स्टोलन द बैग, बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, there is an error in the statement, select the option that identifies the error and supplies the correction। तो अब हम क्या करेंगे, चारों को अप्लाई करके देख लेंगे। कन्याकुमारी इज और आर, इजी रहेगा, ये रॉन्ग हो गया। पॉपुलर फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस और ऑफ, सो फॉर ही रहेगा, कन्याकुमारी फेमस है के लिए, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यूनिक विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड स्टनिंग सनराइज और ऑल्सो स्टनिंग सनराइज, सो ये भी रॉन्ग हो गया, तो बच गया क्या, एक। मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, या तो 3 इनकरेक्ट ढूंढ लो या एक करेक्ट ढूंढ लो। अगर आपको व्यूज में थोड़ा डाउट आ रहा है तो आप बाकी तीनों को चेक करो, 3 रॉन्ग हो गए तो एक अपने आप करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन, द रिपोर्ट कंक्लूड्स दैट डैश लर्नर्स हैव डैश नॉलेज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, सो हैव एवरी नॉलेज या अ लॉट ऑफ नॉलेज या नो नॉलेज और एवरी लर्नर्स। देखो यहाँ पर एवरी नॉलेज रॉन्ग हो रहा है तो ये रॉन्ग हो गया, एवरी लर्नर्स रॉन्ग हो रहा है तो ये रॉन्ग हो गया। नाउ 2 बच गए। द रिपोर्ट कंक्लूड्स दैट नो लर्नर्स हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, ये थोड़ा सा नहीं है, ठीक है ना, इसका मीनिंग सही नहीं है, तो बच गया कौन सा, ए जो है वो दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो इन दिस वे यू आर टू प्रैक्टिस